Good afternoon students, welcome to today's video lecture of probability. We were doing exercise 16.1 based on the concept of random experiment and sample space. So let us first revise the theory within 5 minutes and then we will try to finish exercise 16.1 and the examples 3, 4, 5 which are based on it. Okay. पहला definition हमने क्या किया था? Random experiment. Random experiment क्या था? Random experiment has two characteristics. One mark question भी हो सकता है कि write the two characteristics of random experiment. It satisfies the following two conditions. Random experiment it satisfies following two conditions. आपको याद होना चाहिए it satisfies following two conditions. पहला क्या होना चाहिए? It has more than one possible outcome. मतलब एक से ज्यादा रिजल्ट उसके फेवर में होना चाहिए. It has more than one. It has more than one possible outcome. It has more than one possible outcome. और दूसरा क्या? It is not possible to predict the outcome in advance. It is not possible to predict the outcome in advance. It is not possible to predict outcome in advance. It is not possible to predict outcome in advance. मतलब उसके सारे outcomes हमको पहले से पता है और कौन सा outcome होगा हम उसके बारे में कभी बता सकते हैं after the experiment is performed. ये हो गया random experiment. फिर दूसरा definition का outcome of a random experiment. Outcome of random experiment. Outcome of random experiment क्या होता है? It is result. It is result of random experiment. What is an outcome of random experiment? It is result of random experiment. Simple, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे. It is result of random experiment. ठीक है. Types of sample space का और उसके पहले sample space. Random experiment के all possible outcomes we know in advance. But which outcome will occur can be known only after the experiment is performed. So, set of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space. So, third definition था sample space. Sample space क्या है? It is set of all possible outcomes. It is set of all possible outcomes of a random experiment. It is set of all possible outcomes of a random experiment. ठीक है. और दूसरा sample space is denoted by S. It is denoted by capital S. NCERT textbook में it is denoted by S. फिर दूसरे दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि each element sample space contains all the outcomes. It is set of all possible outcomes of a sample space. और आपको ये याद रखना है कि each element of a sample space को क्या बोलते हैं? Sample point. आपको याद रखना है कि each element of sample space S, each element of sample space S is called a sample point. Is called a sample point. तो उसका मतलब sample point क्या हो जाएगा? Sample point is outcome or result of a random experiment. So sample point वही है. इसका मतलब outcome of a random experiment is also called sample point. So उसका मतलब sample point is outcome or result of random experiment. Simple. or result of random experiment. ठीक है. या आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिजल्ट और आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट. तो मैंने समझा दिया. फेयर इनफ. फिर टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस क्या थे? टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस. टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस. एक होता है फाइनाइट सैंपल स्पेस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस. फाइनाइट सैंपल स्पेस की खासियत क्या थी? फाइनाइट सैंपल स्पेस. इसका मतलब the number of elements can be counted or can be represented by a fixed natural number because it has more than one possible outcome. उसका मतलब और दूसरा infinite sample space मतलब number of elements in the sample space cannot be counted or
the sample space is infinite. तो finite sample space का definition मैंने आपको क्या लिखा था कि if sample space S, if sample space is in one correspondence, if the sample space is in, if sample space is in one correspondence, one correspondence is the set is in one correspondence, is in one correspondence with a finite set. What's a finite set? Where x is a natural number such that 1 is less than equal to n, less than equal to small n, where n is a natural number, then it is called finite sample space, and it is called finite sample space. ये आपको याद रखना है. और आप क्या करोगे कि in a finite sample space, in a finite sample space, you can write number of elements can be counted and be represented by a fixed natural number. Number of elements can be counted is fixed and can be counted, is fixed and can be counted. सिंपल वर्ड्स में लिखा है. और इनफाइनाइट सैंपल स्पेस मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट. टेक्स्ट बुक में सिंपल डेफिनेशन क्या लिखा है कि जो सैंपल स्पेस फाइनाइट नहीं है वो है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, वो है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस. और एक से ज्यादा आउटकम होने ही चाहिए, क्योंकि अगर एक ही आउटकम होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट में तो आपको पता ही चल जाएगा. दैट्स व्हाई उन्होंने लिखा है कि इट इज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम. इफ इधर क्या होना चाहिए, a sample space which is not finite, a sample space which is not finite, a sample space which is not finite is called an infinite sample space. A sample space which is not finite, a sample space which is not finite is called an infinite sample space, is called an infinite sample space, is called an infinite sample space. तो finite sample space हो गया, infinite sample space हो गया. उसके एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, अब एक्सरसाइज 16.1 रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 11 हो चुके थे. 12, 13, 14, 15, 16 बाकी है और ऐसा होगा तो 19 में आपको करके दूंगा. ओके, फर्स्ट लेट मी फिनिश द एग्जांपल्स, वो बेटर रहेगा. एग्जांपल 4 रिलेटिवली इजी है. क्या डिफाइन किया है आप रैंडम एक्सपेरिमेंट को? कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड. तो कॉइन टॉस करने पर क्या आ सकता है? हेड या तो टेल मतलब H या तो T. If it shows head, we draw a ball containing a bag of 3 blue and 4 white balls, and if it shows a tail, we throw a dice. मतलब ओके. तो इस चीज के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि bag consists of 3 blue balls and 4 white balls. ऐसे लिखा है 3 blue balls B1 कैपिटल में एक छोटा B1, B2, B3 and 4 white balls B W1, W2, W3, W4. अब मैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करता हूं कि कॉइन इज टॉस्ड. तो कॉइन टॉस करने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. हेड मतलब H, टेल मतलब T. क्या लिखा है कि if it shows a tail we throw a dice roll. तो डाइस रोल करने पर क्या मिल सकता है वो 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6. और यहाँ पे क्या लिखा है कि if it shows a head, a ball selected from the bag. Let 3 white balls be this and 3 white balls be this in bag of 7 balls. So ball selected from the bag. तो selected ball क्या हो सकता है? Selected ball can be first B1 or B2 or B3 या W1 या W2 या W3 या W4. Understood or not?
फर्स्ट वाइट, सेकंड वाइट, थर्ड वाइट और फोर्थ वाइट। सैंपल स्पेस आपको लिखना है तो बहुत इजीली आप लिख सकते हो कि अगर हेड आता है तो उसके बाद एक बॉल को सिलेक्ट किया तो वो क्या है, HB1, HB2, HB3, फिर HW1, HW2, HW3, HW4 और टेल आने पर डाइसिस रोड, सो T1, T2, T3, T4, T5, T6. This is the sample space. कितने आइटम्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Yes. So total n of s कितना आएगा? 13. Suppose it is 2 mark question. You can write this way. Not a single mark will be cut. So n of s will go. Therefore n of s is 13. 1, T1, T2, 6 and 7. Yes, perfect. Now example number 5 देखो. This is a finite sample space. This is finite sample space because number of elements can be counted, which is 13. Fifth, next step. Consider an experiment in which a coin is tossed repeatedly until a head turns up. मतलब यहाँ पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि a coin is tossed. Example 5. A coin is tossed. Here a coin is tossed till head comes, till a head turns up, till a head turns up. Okay, ठीक है? तो उसका मतलब head can turn up on first toss or second toss or third toss or fourth toss and so on. A head can come. Okay, here head may come on. Here head may come up, or I can say come up on first toss or on second toss or on third toss or on fourth toss and so on and so on. समझे? मतलब पहले हेड आ सकता है, रुक जाओ। पहले टॉस पे टेल आया और दूसरे टॉस पे हेड आया तो रुक जाओ। पहले दूसरे टॉस पे टेल और तीसरे टॉस पे हेड, रुक जाओ। मतलब सीपी को तब तक उछालना है जब तक कि हेड न आए। तो ये तो चलता ही जाएगा। मतलब पहली बार में हेड आया, रुक जाओ। फिर दूसरी बार में पहली बार टेल, फिर दूसरी बार में हेड, तो सही है, यहाँ पे रुक जाओ। फिर पहली दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड, तो रुक जाओ। फिर पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल और फिर चौथे टॉस में हेड, तो रुक जाओ। ऐसे तो चलते जाएगा। यस, so this is an example of infinite sample space. This is an infinite sample space. This is infinite sample space. जब भी infinite sample space हो तो either you can write first 3 outcomes or 5 outcomes. So preferably you write 4 outcomes. ठीक है? Good teachers 3 outcomes लिखते हैं, good teachers 5 लिखते हैं. Better is you write 4 outcomes. Yes, no teacher will give you wrong. So example 4 done, example 5 done. Now let me do example number 3. Let me do example number 3. What is example number 3? I believe अच्छा question है, उसको mark करना. In each of the following random experiments, find the appropriate sample space. A boy has 1 rupee coin, 2 rupee coin, and a 5 rupee coin. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. Okay, without replacement. ऐसा लिखो कि फर्स्ट में क्या है कि 1 rupee coin, 2 rupee coin और 3 rupee coin, 3 coins हैं और वो 3 कॉइन में से वो कोई भी 2 कॉइन निकालता है वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। आप समझ गए? मतलब अगर पहला 1 rupee कॉइन निकाला, देखा बैग में से और फिर वो लड़का दूसरा कॉइन 1 rupee कॉइन नहीं हो सकता, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कॉइन के हेड या टेल है वो नहीं हमको देखना है, हमको 1 rupee कॉइन, 2 rupee कॉइन और 3 rupee कॉइन को आइडेंटिफाई करना है सैंपल स्पेस के लिए। तो आप ऐसा लिखो कि let 1 rupee coin be represented by, उन्होंने क्या लिखा है? Q. Okay, QPR ऐसा क्यों लिखा है? QHR ABC लिखो, बेटर रहेगा। Let A denote 1 rupee coin. Let A denote 1 rupee coin. फिर B denote, मैं ऐसे लिखता हूँ, B denote 2 rupee coin. फिर वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, H B आ रहा है तो बोलेंगे H किसके लिए है? बेटर 2 rupee coin and C denote
3 रुपी कॉइन, 3 रुपी कॉइन, ठीक है। अब क्या होता है, 2 coins are selected, 2 coins are selected, 2 coins are selected from 3 coins, कौन से, A B C, A B C, one after the other, one after the other, और जब कुछ भी मेंशन ना किया हो मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहला कॉइन देखा और देखा या तो 1 रुपी कॉइन है, फिर साइड में रखिए, फिर दूसरे कॉइन के लिए यू अंडरस्टूड, एक कॉइन जो पहला देखा है इट इज नॉट पुट बैक, मतलब पहले कॉइन के लिए कितने कॉइन्स आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, और सेकंड सिलेक्शन के लिए हाउ मेनी कॉइन्स आर अवेलेबल, ओनली 2। ओके, सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा। ओके, अगर पहला कॉइन 1 रुपी कॉइन है, अगर मेरा पहला कॉइन 1 रुपी कॉइन है तो सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड 2 रुपी कॉइन हो सकता है, और अगर पहला कॉइन 1 रुपी कॉइन है तो सेकंड कॉइन कौन सा हो सकता है, 3 रुपी कॉइन, मतलब AB और AC। अगर मैं पहला कॉइन सिलेक्ट करता हूं 2 रुपी कॉइन B, तो दूसरा कॉइन क्या हो सकता है, अगर या तो वो फर्स्ट 1 रुपी कॉइन हो सकता है मतलब BA, और अगर दूसरा तो मैं अगर पहला सिलेक्टेड कॉइन इज पहला सिलेक्टेड कॉइन, ओके प्रॉपर वे यू अंडरस्टैंड, ABC है हमारे पास 3 कॉइन्स ABC, ये जो मैं लिख रहा हूं ड्रॉप करके बताना, वो आपको नहीं लिखना है। अगर फर्स्ट कॉइन इज A तो A सिलेक्ट हो गया, A है, तो सेकंड कॉइन कौन सा हो सकता है, या तो वो 2 रुपी कॉइन या तो 3 रुपी कॉइन, इसके मैं लिखूंगा AB या AC। ओके, अब अगर पहला कॉइन सिलेक्टेड इज, अगर पहला सिलेक्टेड कॉइन इज 2 रुपी कॉइन मतलब B है, तो सेकंड कॉइन क्या हो सकता है, 1 रुपी कॉइन मतलब BA, या फिर 2 रुपी कॉइन 3 रुपी कॉइन BC, और अगर फर्स्ट सिलेक्टेड कॉइन इज 3 रुपी कॉइन C, तो सेकंड कॉइन क्या होगा, सेकंड सिलेक्शन के लिए A और B ही रहेंगे, तो 3 रुपी कॉइन 1 रुपी कॉइन 3 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन, ये आउटकम आएगा। टेक्स्ट बुक में उन्होंने QRH लिखा है, उन्होंने QRH लिखा है, यू कैन राइट दिस वे आल्सो, मैं दूंगा 1 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन 1 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन 1 रुपी कॉइन 2 रुपी कॉइन 3 रुपी कॉइन, फिर 3 रुपी कॉइन 1 रुपी कॉइन 3 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन। You can also write 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 1। Okay, let 1 denote 1 rupee coin, 2 denote 2 rupee coin, 3 denote 3 rupee coin। You can write it back। No issues। ऑर्डर करके लिखो तो भी चलेगा, नोटेशन में लिख लो। एंड हाँ, कितने ऑप्शंस हैं, 6। N of S is 6। This is finite sample space। This is finite sample space। Suppose these kind of questions come for 2 marks, always nice कि आप n of s भी लिख दो और कौन सा टाइप ऑफ सैंपल स्पेस है, so not a single mark will be cut। Okay, now next one is okay, a person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year। अब number of accidents क्या हो सकता है, एक दिन 0 accidents हो सकते हैं, कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन 0 एक्सीडेंट होंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें एक्सीडेंट्स 1 हुए होंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें 2 एक्सीडेंट होंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें एक्सीडेंट्स 3 या 4 या 5 या 6 ऐसे होंगे। तो कैन यू से नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ओके सेकंड, जो सेकंड है उसमें क्या लिखा है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ओके द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कैन बी, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, the number of accidents can be क्या हो सकते हैं, कुछ दिन में 0 एक्सीडेंट हो सकते हैं, और कुछ दिन में कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन एक ही एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें ओके a person notes down the number of accidents, a person notes down number of accidents on a highway, on a highway, ठीक है, this is given। अब number of accidents कुछ दिन में 0 भी हो सकते हैं, so therefore number of accidents on certain days, number of accidents can be क्या क्या हो सकते हैं, कुछ दिन में 0 और कुछ दिन में खाली एक ही एक्सीडेंट होगा, और कुछ दिन में 2 भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, और कुछ दिन में 3 भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, और कुछ दिन में 4 एक्सीडेंट्स एंड सो ऑन। तो नोट टू दी सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ
एक्सीडेंट्स अगर ढूंढने हैं तो कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन 0 एक्सीडेंट हुए, कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन 1 एक्सीडेंट हुआ, कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन 2 एक्सीडेंट हुए. There will be days when there will be only 3 accidents, there will be days when there will be 4 accidents and so on. So 0 1 2 3 4 dot dot dot. अब देखो उसको ना 3 ही आउटपुट लेते हैं. तो उसमें 3 और ये जो 5th था उसमें 5 लिखे हैं. That's why 0 1 2 3 4 5 6 7 dot dot dot. So this is an infinite sample space. This is an infinite sample space. और ये A B C की जगह पे टेक्स्ट बुक में पिछले वाले में QRS लिखा है, तो आप ऐसे करके भी डिनोट कर सकते हो. Now let us finish the remaining questions of exercise 16.1. Okay, तो ये आपको तीन क्वेश्चन समझ में आ गए, तो आपको एग्जाम्स में डाउट नहीं होगा. और ये इसमें दो क्वेश्चंस इजी थे और वो काफी अच्छे थे. So that will clear your doubts very nicely. So now let me continue with exercise 16.1. Okay, question number 12 से बाकी था करना. Question number 12. A coin is tossed. Okay, experiment आप समझो. A coin is tossed. If the outcome is head, a dice is thrown. If the dice shows up even number, the dice is thrown again. What is the sample space? मतलब पहले coin को toss करते हैं. Coin को toss करने पर head या tail आएगा. Head आने पर क्या हो रहा है? A dice is thrown. और tail आता है, उसके बारे में कुछ नहीं. और डाइस को रोल करने पर अगर इवन नंबर आता है तो डाइस इज थ्रोन अगेन. ओके, नाउ थोड़ा अलग है, टफ नहीं है, अच्छे तरीके से करना है. कॉइन इज टॉस्ड, राइट ऑफ दिस कैन. कॉइन इज टॉस्ड, तो क्या आ सकता है? हेड या टेल. और ये क्या बोलता है कि हेड आने पर a dice is thrown. हेड आने पर डाइस रोल्ड. और डाइस रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? डाइस रोल करने पर if the dice shows up even number, डाइस रोल करने पर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6. तो अगर इवन नंबर आता है, दो नंबर आ सकते हैं. इवन नंबर्स आ सकते हैं या ऑड नंबर्स आ सकते हैं. ओके, तो इवन नंबर आने पर क्या होता है? डाइस इज थ्रोन अगेन. ओके, अब ये ऐसा लिखेंगे, इससे अच्छा बेटर है आप देखो मैं क्या लिखूंगा. इट्स ऑलवेज नाइस राइट दिस. कॉइन टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड. तो कॉइन को टॉस करने पर क्या मिलेगा? हेड. हेड मतलब एच नीचे ही लिख दिया. और टेल. अब टेल आने पर क्या होता है वो नहीं लिखा. इफ हेड कम when the coin is tossed once, क्या लिखा है? if the outcome is head, dice rolled या thrown. dice roll करने पर हमको पता है 1 2 3 4 5 या 6 आएगा. और उसमें भी दो केसेस है, इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स अगर आते हैं मतलब 2 4 या 6, या यहाँ पे है ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या है? 1 3 5. और वो क्या कहता है कि अगर इवन नंबर आता है तो डाइस इज रोल्ड. डाइस रोल्ड, तो डाइस रोलिंग में क्या आ जाता? 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे इवन नंबर्स आने पर डाइस रोल्ड. और डाइस रोलिंग में कौन से आउटकम्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. अंडरस्टूड. और ऑड नंबर्स 1 3 5 आने पर आगे कुछ नहीं, और टेल आने पर कुछ नहीं. इसका सैंपल स्पेस आपको लिखना है. इसका सैंपल स्पेस आपको लिखना है. हेड आया और अगर ऑड नंबर, हेड आया और इवन नंबर तो डाइस इज रोल्ड. H 2 1 आप समझ कैसे लिखना? हेड आया और इवन नंबर मतलब H 2 1, फिर H 2 2, H 2 3. लेट मी चेक द आंसर. ऐसे लिखा है डायरेक्टली. फिर उन्होंने टेल. ओके, तो वो नीचे से लिख रहे हैं, पीछे का आउटकम हमें लिखना है. आप देखो, अगर टेल आया तो कुछ नहीं होता है, टेल लिख दिया. फिर हेड आया तो डाइस को रोल किया, और डाइस को रोल करने पर ऑड नंबर आ जाए तो आगे कुछ नहीं होता है. तो H1 H3 H5 लिख रहे हैं. आप देखो टी के बाद उन्होंने लिखा है H1 H3 H5. अंडरस्टूड. नाउ अगर हेड आया और डाइस रोल किया, डाइस रोल करने पर इवन नंबर 2 4 6 आता है तो फिर डाइस इज रोल्ड. 2 पे 1, फिर 2 पे 2 2 3 2 4 2 5 2 6. तो H 2 1
क्या था H21 होगा, यस H21 H22 H21 H22 H23 H24 H, आप समझे? H3 इवन नंबर 2 और इवन नंबर 2 आने पर टाइप होगा H21 H22 H23 H24 H25 H26 H25 H26 फिर हेड आया और इवन नंबर 4 आया तो वापस डाइस रोल तो H41 हेड आया, इवन नंबर सेकंड टाइम में डाइस रोल किया, इवन नंबर 4 आया, फिर H42 फिर H43 फिर H44 फिर H45 H45 फिर है H46 फिर है हेड आया और फिर इवन नंबर 6 आता है और इवन नंबर 6 आने पर डाइस रोल किया जाएगा H61 H62 फिर H63 H64 H65 H66 समझ गए? H63 H64 H65 H66 okay. Sometimes they don't ask this question, they write the question as find the number of outcomes of the sample space. तो पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा, फिर S लिखना पड़ेगा और n of S मतलब number of outcomes in the sample space 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 so 20. This can be very good question. Okay, this is the question लिखेंगे और they not ask the write the sample space. They will say write how many outcomes are there in the sample space of the random experiment. आपको ऐसे लिख के मतलब sample space को लिखना है और उसके बाद आंसर आता है. Understood? Understood? So पूरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या था, कॉइन को टॉस किया, कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन टॉस करने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, टेल आने पर कुछ नहीं लिखा है, if the outcome is head of the coin तो डाइस इज रोल्ड, सो डाइस रोल्ड. अब डाइस रोल करने पर वो क्या कहता है कि इवन नंबर आया या ऑड तो वो पार्टीशन हो जाएंगे ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स. अब ऑड नंबर्स में कुछ नहीं है मतलब 1 3 5 अगर आता है तो रुक जा, पर इवन नंबर्स 2 4 या 6 आता है तो डाइस रोल्ड, डाइस रोल्ड. तो फिर इवन नंबर आने पर डाइस इज रोल्ड और डाइस को अगर आप रोल करोगे तो कौन से आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 फिनिश्ड. तो फिर ये आउटकम्स आपको कैसे लिखना है, सी हाउ यू कैन राइट दिस. अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप यहां पे सेट में लिखते जाओ, बट फिर देन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. इट्स ऑलवेज बेटर क्या दिस वे राइट द टीचर विल अंडरस्टैंड. तो पहला टी लिख दिया, टी आने पर कुछ नहीं, तो टी हेड आया और डाइस रोल करने पर ऑड नंबर आया तो H1 H3 H5 लिख दिया मैंने और हेड आया. अभी डाइस रोल करने पर इवन नंबर आया, सपोज 2 आया तो H2 उसके बाद डाइस रोल किया H21 H22 H23 H24 H25 H26 वो लिखा है मैंने H21 H22 H23 H24 H25 H26. फिर हेड आया और डाइस रोल किया 4 आया इवन नंबर तो H41 H42 H43 H45 H46 और ना फिर H हेड आया और फिर इवन नंबर 6 आया H61 H62 H63 H64 H65 H66. टोटल हाउ मेनी आउटकम्स 1 2 so 6 6 18 plus 1 and 3 so 22. 1 2 3 4 okay and 6 6 6 18 so सही. Now 12 में अब आप मल्टीप्लाई करो. See these are nice questions. So ऐसे questions आना possibility है और mostly they will ask the sample space या फिर number of outcomes in the sample space. So nice question. Now we have finished 12. 13 देखो question number 13 क्या लिखा है. The numbers 1 2 3 4 are written separately on 4 slips of paper. तो 4 slips of paper are marked with numbers 1 2 3 4. ठीक है. The slips are put in a box and mixed thoroughly and a person draws 2 slips from the box one after the other without replacement. Okay, मतलब 4 slips are put in a box and 2 slips are selected randomly in succession मतलब one after the other without replacement. Okay, without replacement. तो जरा समझना. And the number on the slip is noted. So 4 slips are marked with numbers
4 slips marked with numbers 1, 2, 3, 4. 4 slips marked with numbers. 4 slips marked with numbers 1, 2, 3, 4 are put in a box. Are put in a box and mixed. thoroughly लिखना है and mixed. ठीक है? Are put in a box and mixed. Okay. One slip is selected. 2 slips, sorry. 2 slips are selected. 2 slips are selected. और कैसा लिखा है? 2 slips are selected in succession, मतलब one after the other. One after the other. उसका दूसरा वर्ड है in succession. और हाँ, with replacement, without replacement, without replacement, without replacement. And number on the slip is noted. And number on slip is noted down. तो उसका सैंपल स्पेस लिखना है. अब हमारे पास 4 स्लिप्स हैं. ओके, मैं सैंपल स्पेस डायरेक्टली लिखूंगा. यहाँ पे जो है 1, 2, 3 और 4 ये है बॉक्स में. ओके, तो मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ S. ओके, आपको ऑर्डर पेयर में लिखना है पीछे आंसर. आई बिलीव पीछे आंसर ऑर्डर पेयर में. ओके, सो पहला जो होगा तो यहाँ पे पहला नंबर क्या होगा? पहली बार जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास पहली बार सिलेक्ट करने के लिए 4 स्लिप्स हो गए और विदाउट रिप्लेसमेंट है. तो अगर स्लिप मार्क विद नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो सेकंड स्लिप कैन बी स्लिप विद नंबर 2 और स्लिप विद नंबर 3 और स्लिप विद नंबर 4. मतलब पहली बार के सिलेक्शन में हमारे पास 4 स्लिप्स है और दूसरी बार में 3. तो टोटल आपको 4C1 * 3C1 मतलब 4 * 3 12 होने चाहिए. अब वो सब लॉजिक में नहीं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं वरना फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे. ओके, तो मुझे सैंपल स्पेस लिखना है तो रफ में आप ऐसा लिख सकते हो 1, 2, 3 और 4. अब सपोज मैंने सिलेक्ट किया है स्लिप विद नंबर 1, वो सिलेक्ट कर लिया और विदाउट रिप्लेसमेंट. तो पहले ये चारों में से मैंने सिलेक्ट किया स्लिप विद 1, अब वो हटा दिया. अब सेकंड टाइम में सिलेक्ट करना है तो मेरे पास 3 स्लिप बचेंगे. तो सेकंड नंबर क्या हो सकता है? 2, 3 या 4. अगर मैंने 1 सिलेक्ट किया है स्लिप विद नंबर 1 तो सेकंड स्लिप क्या हो सकता है? 1, 2 या 1, 3 या 1, 4. आप समझ गए? अगर मैं पहली स्लिप सिलेक्ट करता हूं जिस पे 2 लिखा है तो पहले स्लिप विद 2 सिलेक्ट कर लेंगे, वापस नहीं रखना. तो मैं लिख रहा हूं 2. तो सेकंड स्लिप क्या हो सकती है? या तो स्लिप विद नंबर 1 या स्लिप विद नंबर 3 और स्लिप विद नंबर 4. तो मुझे क्या मिलेगा? 2, 1, 2, 3 या 2, 4. आप समझ गए ये कैसे आया? ओके, तो 1, 2. अगर मैं स्लिप विद नंबर 1 लिखता हूं तो सेकंड स्लिप क्या होगा? विद नंबर 2 या 1, 3 या 1, 4. ठीक है, और 2, 1, 2, 3, 2, 4 मैंने आपको समझा दिया. अब अगर पहला स्लिप मैं सिलेक्ट करता हूं जिस पे 3 लिखा है तो सेकंड स्लिप सिलेक्शन के लिए मेरे पास स्लिप नंबर 1, 2, 4 होगा. तो 3, 1 हो सकता है, 3, 2 हो सकता है या 3, 4 हो सकता है. एंड लास्ट वन आई बिलीव अगर स्लिप विद पहला सिलेक्टेड स्लिप एज नंबर 4 हो गए तो हमको क्या मिलेगा? 4, 1, 4, 2 और 4, 3. और हाँ, यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 नहीं आएगा. मतलब स्लिप मार्क द सेम नंबर कैनॉट बी सिलेक्टेड ट्वाइस. मींस 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 नहीं आएगा. नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस कितने होंगे? 12. 4C1 * 3C1 और दिस इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस. दिस इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस. मैं डायरेक्टली काउंट करके बताया है. यहां पे मैं 4C1 * 3C1 ऐसे नहीं लिख रहा हूं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं. ओके, एन एक्सपेरिमेंट. ओके, लेट मी डू 15, 14 here 15 कर देते हैं. थोड़ा इजी है. A coin is tossed which shows a tail. We draw a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows a head, then we throw a dice. Okay. तो एक बॉक्स में 2 रेड है और 3 है. कैपिटल रखना है. ओके, सो लेट 2 रेड है ना. सो लेट R1 R2 be 2 red balls and black balls है ना. and B1 B2 B3 be 3 black balls in the box. Okay. अब क्या है एक्सपेरिमेंट? कॉइन इज टॉस्ड
कॉइन टॉस करने पर क्या आ सकता है, हेड या टेल, और हेड आया तो बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स, बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। और सिलेक्टेड बॉल क्या हो सकता है, सिलेक्टेड बॉल हो सकता है रेड, फर्स्ट रेड या सेकंड रेड या फर्स्ट ब्लैक, ब्लैक यस B1 B2 या B3। और अगर टेल आती है मतलब टी आता है तो इफ इट शोज टेल, इफ इट शोज टेल है उल्टा है सी। अगर आप इसे उल्टा लिख दिए यू गेट रॉन्ग। इफ हेड या टेल आता है, हेड मतलब हेड आ सकता है, टेल मतलब टी आ सकता है। क्या लिखा है, इफ इट शोज टेल। ओके, अगर टेल आती है तो बॉल इज सिलेक्टेड, बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग या बॉक्स। तो वो बॉल क्या हो सकता है, फर्स्ट ब्लैक R1 या R2 या फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक B2 या थर्ड ब्लैक B3। और हेड आने पर भी थ्रो डाइस, हेड एच आता है तो डाइस इज रोल्ड, और डाइस रोल करने पर क्या आ सकता है, नंबर ऑफ द डाइस कैन बी 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। You write the sets, okay, it's fine because you are writing like this, the teacher will not be wrong। तो sample space में क्या आएगा सीधा, and then number of, this is same as one of the illustrations which we did, so easy question। मतलब दो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसके बाद मैं एक रिलेटिवली इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ। therefore S sample space will be head पे क्या आता है, टेल वाला बयान लिख रहे हैं, हेड वाला बयान लिख रहे हैं। फिलोसोफर्स नीचे आंसर में उन्होंने टेल से शुरू किया है, सो यू गेट टेल, इफ टेल कम्स सो therefore टेल आने पर फर्स्ट रेड बॉल, टेल आने पर सेकंड रेड बॉल, टेल कम्स फर्स्ट ब्लैक बॉल, सेकंड TB2 TB3 और H1 H2 H3 H4 H5 and H6, and how many outcomes are there, now you can count, just count the outcomes, 6 H1 H2 6 होंगे और 1 2 3 4 5 11 outcomes will be there, so it is a finite sample space। okay, और अगर आपको यहाँ पे पहले टेल वाले लिख दो और फिर बाद में हेड वाले साथ में लिख दो, so H1 H2 H3 H4 H5 H6, so therefore number of outcomes in the sample space will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So this is a finite sample space, this is finite sample space, this is finite sample space। now two questions are remaining in the exercise 16 and 14। okay, पहले 16 करते हैं। छोटा क्वेश्चन लिखा है, that's why a dice is thrown repeatedly until a 6 comes up। okay, a dice लिखा है but it is a dice, a dice is thrown repeatedly, तब तक डाइस को उछालते रहो until 6 comes up, until 6 comes up। okay, तो 6 क्या है, कौन से टॉस पे आ सकता है, 6 can come on the first toss or second toss or third toss and so on, yes or no। 6 number 6 may come या may come up on the first toss, number 6 can come up on first toss and come up on first toss or second toss or third toss and so on। so definitely this is an example of infinite sample space। अगर पहले टॉस पे ही आ गया तो 6, फिर सेकंड टॉस मतलब 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 नहीं आ सकता, so ऑर्डर टाइप के फॉर्म में लिखना है तो कैसे मैं लिखूंगा, तो सैंपल स्पेस इसका मैं लिख रहा हूं कि अगर वो फर्स्ट टॉस पे ही आया 6 तो 7 टूट जाएगा, फिर फर्स्ट टॉस पे 1 आया और सेकंड टॉस पे 6 आया, 1 6 फिर 2 6 3 6 4 6 और 5 6
अब अगर आपको ज्यादा नहीं आता है और थर्ड टॉस सो ऑन डॉट डॉट करके लिख दो तो भी चलेगा, टीचर विल अंडरस्टैंड। पर थर्ड टॉस के लिए अगर आपको लिखना है तो उसका मतलब पहले टॉस पे 1 आया, फर्स्ट टॉस पे 1 भी आ सकता है, तो 116, फिर 126, 136, 146, 156, यस परफेक्ट, 116, फिर है 126, फिर है 136, फिर पहला नंबर 1, फिर 4 और 6, फिर 156। ओके, तो उन्होंने क्या लिखा है 116 डॉट 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 156 लिखा है या 126 के बाद, यस परफेक्ट उन्होंने लिखा है। तो ये सारे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 116 126 डॉट 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 156, फिर थर्ड टॉस के बारे में बात करो, फिर 2 अगर पहला नंबर 2 है, फिर 1 2 1 6 2 2 6 डॉट 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 2 5 6, फिर क्या आएगा बड़ा सा एस लिख रहे हैं हम लोग, और अगर आपको यहाँ पे इसके बाद 3 डॉट लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर पहला 3 1 6 3 2 6 डॉट 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 3 3 6 3 4 6 3 5 6 3 5 6, फिर 4 1 6 4 2 6 डॉट 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 क्या आएगा 4 5 6, फिर 5 1 6 5 2 6 डॉट 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 5 5 6, और उसके बाद उन्होंने डॉट 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 किया है 5 1 6, यस यस यस, सी बहुत अच्छी लिखा है डॉट 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 डॉट, इनफ, दिस इज एन इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ओके, इस सैंपल स्पेस को वापस आपको लिख के देता हूं अगर किसी को थोड़ा समझ में नहीं आया कि a dice is thrown repeatedly until 6 comes up, number 6 can come up on first toss or second toss or third toss, तो S पहले टॉस पे ही आ गया तो आप रुक जाओ 6 पे, सेकंड टॉस पे 6 आया मतलब 1 6, पहले पे 2 दूसरे पे 6, रुक जाओ 3 6 4 5 और अरे 4 6, पहले पे 4 और फिर 6, फिर पहले पे 5 और दूसरे पे 6, तो बोलेगा पहले पे 6 आएगा, तो यही है क्यों 6 6 क्यों होगा, जैसे 6 आया रुक जाने का। ओके, अब थर्ड टॉस का मैं सब कुछ लिखता हूं तो देखो क्या होगा। अब थर्ड टॉस के लिए आउटकम्स कौन से होंगे, यस पहले पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, सो 1 1 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 6, फिर 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 4 6 और 2 5 6। नाउ यू नो मैं 3 1 6 3 4 और 5 वाला लिखने वाला हूं और फिर डॉट डॉट होता है। अगर आपको ये लिखना है तो भी चलेगा और अगर आप ऐसे लिखने में लिखोगे तो भी चलेगा। फिर आप लिखो 3 1 6 3 2 6 3 3 6, ये वो कंफ्यूजिंग है पीछे जो आंसर लिखा है 3 4 6 3 5 6। मैं सारे को लिख रहा हूं बिकॉज़ मैं लिखा है मेक ऑन फर्स्ट टॉस और सेकंड टॉस और थर्ड टॉस एंड सो ऑन, या तो फिर आपको लिखना है ऑन द फर्स्ट टॉस और सेकंड टॉस एंड सो ऑन, तो खाली लिख दे 6 1 6 2 1 3 6 4 6 5 6 डॉट डॉट, वो भी चलता है, वो टीचर और नहीं देता है बिकॉज़ आपने और फिल करने का इंटीजर इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, तो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे 4 2 6 4 3 6 4 4 6 और 4 5 6 6। कोई बोलेगा 6 6 6 कैसे आएगा 6 6 6 कैसे 6 आएगा, आपको रुक जाना है, तो S मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे हमारा S खत्म हो जाएगा और फिर है 5 1 6 5 2 6 5 3 6, इसको मार्क करना अच्छा क्वेश्चन है, 5 4 6 और 5 5 6 आगे नहीं जाना है, फिर वहां पे आपको डॉट 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 लिख देना पड़ेगा एंड में, और भाई यहाँ पे फिर आप कॉमा करके डॉट 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 3 डॉट दे देने के, दैट्स एंड, so that is the sample, understood? Okay, that's why I have written this twice. Okay, फिर एंड में लिखो this is an infinite sample space, और अगर ज्यादा नहीं आता 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 कॉमा डॉट 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 देने का,
और this is an infinite sample space. The teacher will not cancel your marks. Okay, इसे क्रॉस P और आपको क्या करना है इधर 6 can jump on first toss or second toss or third toss and so on. So teacher will understand और आपने खाली कितना लिखा है, your marks will not be cut. This is an infinite sample space. S is equal to this is an infinite sample space. This is an infinite sample space. Okay, got it? This is done. Wait 1 minute. Okay. Now, which question we finished? We finished 16. Now, 14 is remaining. The last question of this exercise. 14. क्या है? A coin is tossed. If it should, an experiment consists of rolling a dice and then tossing a coin once if number on the dice is even. If the number on the dice is odd, coin is tossed twice. Okay. सबसे पहले an experiment consists of rolling a dice. Okay. तो सबसे पहले dice is rolled और यहाँ पे जो differentiation हो रहा है वो कैसे हो रहा है कि then tossing a coin if the number on the dice is even या तो number on the dice is odd. तो यहाँ पे अगर even numbers on the dice या odd numbers on the dice. Even numbers on the dice क्या होते हैं 2 4 6 या तो odd numbers 1 3 5. ओके ऐसा आप लिख दो. अगर even number आता है if then tossing a coin once if the number on the dice is even. ओके तो coin tossed is tossed once और एक बार कॉइन उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. और यहाँ पे क्या है अगर ऑड नंबर आता है if the number on the dice is odd, if the odd number is on the dice is what is odd number on the dice, then the coin is tossed twice. Okay, coin is tossed twice और coin is tossed twice. तो आपको पता है कि वो आउटपुट कैसे आप निकालते थे HT क्रॉस HT. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट इज HH HT TH TT आगे सभी परफेक्ट. अब इसका आपको सैंपल स्पेस लिखना है. अब आपको इसका सैंपल स्पेस लिखना है. पूरा समझ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर मैंने उसको कैसे प्रेजेंट किया है वो देखो. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ेंगे और खाली टाइम पास करेंगे. हमेशा टेक्स्ट बुक में से पढ़ना चाहिए. आप देखा क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूं तो क्वेश्चन में पढ़ भी रहा हूं because you have to read from the textbook. If you don't read from the textbook you will not understand a single thing. Textbook is your, you can say, the best book for reference. An experiment consists of rolling a dice. Dice is rolled by लिखा और फिर क्या लिखा है and then tossing a coin once the number on the dice is even और फिर लिखा है if the number on the dice is odd. इसलिए मैंने स्प्लिट किया. फिर डाइस इज रोल्ड तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है पर यहाँ पे स्प्लिट किया है. इवन नंबर आने पर कुछ होता है ऑड नंबर आने पर कुछ करते हैं. तो इफ द नंबर ऑन द डाइस इज इवन तो इवन नंबर आने पर टॉसिंग कॉइन वंस कॉइन इज टॉस फर्स्ट तो हेड या टेल आएगा. सिंपल. तो क्या आ सकता है ओके मैंने इधर लिख दिया हेड H और कॉमा टेल T. हैप्पी. ओके अब ऑड नंबर अगर आया तो कॉइन इज टॉस ट्वाइस. कॉइन इज टॉस ट्वाइस उसका हम आउटपुट डायरेक्टली HT क्रॉस HT का भी करते हैं मतलब HH HT HT. अब इसका सैंपल स्पेस आपको लिखना है तो आप आराम से खत्म कर सकते हो. 2 अगर आया तो हेड मतलब 2H 2T फिर 4H 4T 6H 60 फिर 1 HH 1 HT 1 TH 1 TT. सो मैं इसका सैंपल स्पेस उधर लिखूंगा. द सैंपल स्पेस मैं खाली स्टेटमेंट लिखता हूं. सैंपल स्पेस will be okay x is equal to even नंबर आया 2 आया तो फिर कॉइन को टॉस किया और हेड आया 2H 2T 4H 4T फिर 6H 60. फिर अगर ऑड नंबर 1 आया तो कॉइन इज टॉस ट्वाइस तो क्या आएगा 1HH फिर आएगा ओके मैं लिख देता हूं ये हो गया इवन नंबर्स का. फिर मैं ऑड नंबर से करता हूं 1HH 1H T 1 TH 1 TT हो गया. अगर ऑड नंबर 3 आता है उसके बाद कॉइन इज टॉस ट्वाइस तो 3HH 3HT 3TH 3TT और लास्ट में ऑड नंबर 5 आया तो
coin is tossed twice. So 1 5 coin is tossed twice. 5 HH 5 HT 5 TH और लास्ट में आएगा 5 TT. चेक करो पीछे आंसर और फिर हमारा ऑप्शन स्टूडेंट्स सीधा ये लिख देंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि कैसे आएगा. पढ़ेंगे क्वेश्चन नहीं देखेंगे उसी टाइम क्रिकेट छोड़ देंगे. सी दैट इज डिजास्टर. यू आर फॉलोइंग फॉरएवर ट्रबल. नेक्स्ट विदिन 2 months we are going to start at 12th standard, so become serious. Don't behave like a joke. 1 HH okay, उन्होंने पहले 1 HH लिखा है, 1 HH 1 HT 1 TH 1 TT फिर 2H 2T. ओके मतलब 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 6. इट्स बेटर टू गेट दिस वे. बाय बाय का आंसर है सेम ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 2 3 4 4 4. So 12 plus is 18. So n of s is 18 and this is finite sample space. कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सेम आंसर ऑफ द टेक्स्ट बुक बैठा वैसे ही लिखना है. नो, सेट थ्योरी ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, टोटल 18 आउटकम्स होने चाहिए. तो ऐसे लिखो ना, और ऐसे लिखो ना 2h 2t 4h 4t 6h 6t और फिर इट्स बेटर वे ऑफ राइटिंग गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर. हां, पहले आप ऑड वाला लिखो और फिर इवन वाला लिखो, ये चलेगा. तो आंसर आएगा 1h 1t. हमारा देखो 1h 1ht 1h 1hh 1ht 1th 1tt है, फिर 2h 2t है, फिर 3hh 3ht 3th और 3tt है, 3tt है, फिर 4h और 4t भी है, and then 5hh 5ht 5th 5tt है, 6h और 6t है. Perfect. This is one. Not a single mark will be written. It is coming for 1 mark also or for 2 mark. Even if it is coming for 1 mark, अगर आप ये लिखते हो, ये स्टेटमेंट में एक जगह यूज करने के लिए मैंने लिखा है, ये लिखो और ये लिखो, ये मत लिखना. This is very very important to get a correct sample space. Okay? और अगर 1 मार्क के आपके पास टाइम नहीं है तो सीधा आप लिख देना the sample space is, इतना लिखो चलेगा. If you are not having the time तो आप ये छोड़ दो, चलेगा. क्वेश्चन करो और फाइनल आंसर लिखो. But you must be sure कि आपका आंसर सही होना चाहिए. So that finishes the exercise 16.1. All the questions of exercise 16.1 and we have finished all the examples also. I believe question number 9 मैंने बोला था मैं सॉल्व करूंगा. Question number 9 क्या लिखा है? A box contains 1 red and 3 identical white balls. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space. Okay. Let R here यहाँ पे क्या है? A box contains 1 red है. A box contains 1 red and 3 identical white balls. 3 identical white balls. अब देखो एक ही रेड बॉल है और 3 identical white balls. तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो 3 white balls हैं, 3 white balls वो identical है, मतलब they are similar in shape, size and other aspects. मतलब वो आप उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. मतलब उसको W1 W2 लिखने की जरूरत नहीं है. आप समझ गए? ओके. The 3 white balls are identical or you can say same in shape and size and other aspects. ठीक है, ये मैं लिखा 3 identical white balls का मतलब. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Let R 2 balls are selected. ऐसा कुछ है, 2 balls are selected without replacement. मैं समझ लिखा 2 balls are selected in succession, मतलब one after the other in succession, one after the other without replacement. This is a nice question for 2 marks also. तो ये लिखो तो अच्छा है. अब इसका सैंपल स्पेस देखो. तो पहला बॉल क्या हो सकता है? रेड बॉल. ठीक है, और व्हाइट बॉल ऐसा नहीं है W1 W3. तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि let R denote red ball and W denote white balls. ओके, मतलब W पहला व्हाइट बॉल W, दूसरा व्हाइट बॉल BW, तीसरा व्हाइट बॉल BW और एक रेड बॉल है वो R है. अब हमारे पास आप समझो जो बॉल्स हैं वो R W W W. तो मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूं. ओके, रफ में आपको लिखना है तो यहाँ पे आप समझ जाओ. R रफ में ऐसा लिखना है. अपने
माइंड में ऐसे सॉल्व करो और रफ में तो भी चलेगा। अब समझो पहला बॉल कौन सा होता है, कलर पे ही बेस्ड होगा सैंपल स्पेस। तो पहला बॉल रेड हो सकता है, पहला बॉल अगर रेड है, पहला बॉल अगर रेड है तो मैंने रेड बॉल सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड बॉल क्या हो सकता है, या तो पहला व्हाइट बॉल या दूसरा व्हाइट बॉल और तीसरा व्हाइट बॉल, तीनों आइडेंटिकल है इन शेप और साइज पर, कोई भी चीज रिपीट नहीं करने की। सो RW1 is same as RW2 is same as RW3, so that's why we just write RW. stop, इसी तरह कर सकते हो, RW होगा, yes. So we don't have to write RW1, RW2, RW3, RW1, RW2, RW3 का होगा अगर ये तीनों बॉल्स आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। आइडेंटिकल बॉल अगर नहीं आया होता, जैसे RW हो गया, ओके। अब फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल कैन बी व्हाइट, फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल कैन बी व्हाइट, W1, W2, W3, all the three white balls are identical। तो मैं W1 को सिलेक्ट करूं, W2 W3, एक व्हाइट बॉल सिलेक्ट हो रहा है, इसके व्हाइट, तो व्हाइट सिलेक्ट इन तीनों में से एनीवन। अब सेकंड बॉल क्या हो सकता है, अगर मैंने एक व्हाइट बॉल सिलेक्ट कर ली तो सेकंड बॉल कौन सा हो सकता है, या तो वो रेड भी हो सकता है या तो व्हाइट भी हो सकता है। तो अगर मैं सेकंड बॉल सिलेक्ट करूं रेड, तो पहला व्हाइट मतलब W1 R, W2 R, W3 R नहीं, खाली WR। Am I clear? Okay. अब कुछ वर्ड्स बोलेंगे कि सर तीसरा क्या कॉम्बिनेशन है, पहला व्हाइट मैंने सिलेक्ट कर लिया, पहला व्हाइट मैंने सिलेक्ट कर लिया और दूसरा रेड, पर सेकंड तो दो व्हाइट बॉल्स हैं, तो सेकंड सिलेक्टेड बॉल कैन बी अ व्हाइट बॉल, सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय W, मतलब W1 W1 W2 W1 W3 टाइप, और फिर W2 W1 W2 W3 W3 W1 W3 W2 वो सारे नहीं, खाली W। सिंपल, आप समझ गए। RW क्या इंक्लूड करता है, RW इंक्लूड्स R1 W1 R2, अरे R जो रेड बॉल है वो खाली एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स लिखते R1 इज द रेड बॉल, W1 W2 W3 are the three white balls। तो RW includes R1 W1 R1 W2 R1 W3, ये सबके लिए, इसका मतलब पहला रेड दूसरा व्हाइट RW, because all the three white are identical। अब अगर पहला व्हाइट है उसका मतलब अगर वो पहला W1 है, अगर पहला W1 है तो दूसरा क्या होगा R1, फिर W1 R1 व्हाइट रेड, फिर W2 R1 W3 R1, ये तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए W आ रहा है, बिकॉज़ ऑल द थ्री व्हाइट बॉल्स आर आइडेंटिकल। इसे W1 को W से रिप्रेजेंट करो, W2 को W से रिप्रेजेंट करो, W3 को W से रिप्रेजेंट करो, तीनों एक हो जाएगा, दैट्स व्हाई W आ। और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है WW मतलब अगर फर्स्ट बॉल इज W1 तो W2 W1 W3 W2, सेकंड व्हाइट बॉल, थर्ड व्हाइट बॉल, सेकंड व्हाइट बॉल, इधर फर्स्ट व्हाइट बॉल, और यहां पे आएगा WW includes all W1 first white ball, second white ball, first white ball, third white ball, second white ball, first white ball, second white ball, third white ball, third white ball, first white ball, third white ball, second white ball, but both the balls are identical, तो यहाँ पे these six are equivalent to W, that's why 6 इतना ही आएगा। टोटल ये 6 और वो 3 और वो 3 12 आउटकम्स नहीं आएंगे। अगर उन्होंने ऐसा लिखा होता कि a box contains one red ball and 3 white balls, आइडेंटिकल नहीं आता, तो आपको फिर हमको लिखना पड़ा कि let the red ball be R1 and the 3 white balls be W1 W2 W3, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए आंसर आता R1 W1 R1 W2 R1 W3 W1 R1 W2 R1 W3 R1, और फिर W1 W2 W1 W3 W2 W1 and W2 W3, you understood? W3 W1 W3 W2, okay, you understood how it has come? Okay, so therefore the sample space becomes पहला रेड बॉल और दूसरा व्हाइट बॉल, पहला व्हाइट बॉल और दूसरा रेड बॉल, और दोनों व्हाइट बॉल्स। यहाँ पे वर्ड है आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई मार्क करने का क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट, अगर इस क्वेश्चन ऐसा होता कि a box contains one red and 3 white balls, आइडेंटिकल पे नहीं लिखा होता तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा
फिर ऐसा लिखा होगा 2 balls are selected one after the other without replacement find the sample space. So see, that's why this book is really confusing. Identical word डाल के ऐसा कुछ याद सकते हैं. That's why we do it very perfect. अगर क्वेश्चन होता, नोट करके आप याद रखो कि अगर क्वेश्चन होता कि a box contains 1 red and 3 white balls, 2 balls are selected one after the other without replacement from bag or box. Find its sample space. कैसे लिखोगे? सिंपल. आपको क्या लिखना है यहाँ पे? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि let the solution. One red ball है, मैं सिंपल let R1 denote one red ball and white है ना? W1, W2, W3 denote 3 white balls in the box. Okay, 3 white balls in box. फिर वो स्टेटमेंट आइडेंटिकल वर्ड नहीं आया है, इसलिए all the 4 balls are distinct. Here R1, W1, W2, W3. रेड बॉल तो अलग ही है, कलर से अलग हो जाता है. तो हाँ, सो आप लिख सकते हो R1, W1, W2, W3 are all 4 distinct. 2 balls are selected. One after the other without replacement. ओके, आप समझ गए? तो उसका सैंपल स्पेस पूछा, उसका 2 balls are selected one after the other, मतलब in succession without replacement. मतलब यहाँ पे R1 नहीं आएगा, क्लोरेट R1 नहीं आएगा, W वो नहीं आएगा. आप समझ गए? अब पहला बॉल आप समझो, टीचर लिख रहा. तो हमारे पास जो 4 बॉल्स है वो R1, W1, W2, W3 है, और ये तीनों थोड़े अलग हैं, एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं. मतलब you cannot replace W1 is equal W3 is equal W3 by W. Okay, so what I will write, अगर पहला बॉल R1 है, मतलब वो रेड है, तो दूसरा बॉल क्या हो सकता है? व्हाइट. तो वो होगा R1 अगर सिलेक्ट हो चुका है, since it is 2 balls selected one after the other without replacement, तो फर्स्ट बॉल इज सपोज रेड R1, तो दूसरा बॉल W1 हो सकता है, W2 हो सकता है, W3. so R1 W1 आएगा, R1 W2 आएगा, या R1 W3. आप समझ गए? ओके. अब अगर पहला बॉल W1 है, मतलब व्हाइट और रेड, तो W1 R1 मतलब व्हाइट रेड वाले में लिख रहा हूं, W1 W2 R1 और W3 R1 मतलब व्हाइट रेड व्हाइट या व्हाइट रेड. और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों व्हाइट, और दोनों व्हाइट में है. अगर पहला बॉल W1 है तो दूसरा बॉल W2, W1 तो W1 W2, W1 W3, W2 W1, W2 W3. थर्ड व्हाइट बॉल, फर्स्ट व्हाइट बॉल, थर्ड व्हाइट बॉल, सेकंड व्हाइट बॉल. समझ गए? सो मतलब 18 आउटकम्स की जगह पे खाली 3 आए. तो ऐसे भी जस्ट 1 मिनट मैथ्स समझ से करना पड़ता है. 10 मिनट थोड़ा सा और करना है. विल कंटिन्यू. किसी कौन सा क्वेश्चन मुझे करना चाहिए? ओके, वी हैव finished this sum now. Okay. Few theoretical points are there. Event
types of events and sure event and simple event and compound event. Okay, let me give those theoretical definitions. Okay, and I will revise, but it's always nice to revise. So पहले exercise खत्म हो चुकी है. Now let me give you the definition of few theoretical points. Now क्या दिया है कि what is an event? Okay. Now first now occurrence of an event. Okay, event is a subset. Okay, पहला definition आप लिखो. हमारे सिलेबस में अब फाइनाइट सैंपल स्पेस ही आएंगे मोस्टली सारे सम्स. अब मैं लिख रहा हूं इवेंट. एक डेफिनेशन है इवेंट. व्हाट इज एन इवेंट? इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस S. It is subset of sample space S. It is subset of sample space S. आप कनेक्ट कर सकते हो सेट थ्योरी के साथ कि सेट थ्योरी में जो यूनिवर्सल सेट था तो सैंपल स्पेस S is like the universal set in probability. और पता है सबसेट्स थे जो यूनिवर्सल सेट सारे सेट्स सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं. तो इवेंट्स को आप कंसीडर कर सकते हो सेट्स. और इवेंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A B C D. Events are denoted by you can say capital letters A B C. Capital letters are denoted by capital letters A B C X Y Z etc. So what is an event? It is a subset of sample space and capital letters are used for representing the event. Now types of events मैं आपको बताता हूँ. Types of events. First is impossible event. जो null set था वैसा है impossible event. Impossible event का मतलब था impossible event और दूसरा था 10 मिनट. ओके, इवेंट लिखा. अब मैं लिख रहा हूं आपको impossible event. What is impossible event? Impossible event वो इवेंट होगा जिसके फेवर में एक भी आउटकम नहीं होगा. It has no outcome or result in its favor. It has no outcome or result in its favor, or it is denoted by null set. It is denoted by you can say by. आपको पता है कि अगर कोई भी आउटकम नहीं है तो null set is subset of every set, so that's why it has no outcome in its favor and it is denoted by phi. और उन्होंने लिखा है कि the empty set is called the impossible event. Empty set ऐसा भी चलेगा. Empty set phi is impossible event. Okay, is impossible event. टेक्स्ट में कैसे लिखा है? सिंपल. जिसके फेवर में कोई भी आउटकम नहीं वो impossible event null set is impossible event. तो उसका मतलब impossible event it is denoted by phi. It is denoted by phi. करेंगे. मैं बहुत सिंपल एक एग्जांपल दूंगा, आप सब चीजें समझ जाओगे बहुत इजीली. अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में आपको नहीं सिखाऊंगा. ओके, इवेंट. व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट इट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस S. इवेंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A B C. इम्पॉसिबल इवेंट मतलब इट इज डिनोटेड बाय phi. एम्प्टी सेट को ही इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं और उसके फेवर में एक भी आउटकम नहीं होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज श्योर या सर्टेन इवेंट. श्योर और सर्टेन इवेंट. तो इसमें क्या होगा? इट हैज सैंपल स्पेस के सारे आउटकम्स इसके फेवर में होंगे. सैंपल स्पेस के सारे आउटकम्स इसके फेवर में होंगे. उसका मतलब सैंपल स्पेस खुद श्योर इवेंट है. तो क्या होगा? व्हाट इज श्योर इवेंट? इट हैज all outcomes, all possible outcomes of sample space S or sample space S in its favor. और टेक्स्ट बुक में सीधा लिख दिया है कि sample space S is sure or
सर्टेन इवेंट। तो श्योर इवेंट को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। इट इज डिनोटेड बाय एस। इट इज डिनोटेड बाय एस। सिंपल। तो टाइप्स ऑफ इवेंट से पहला हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या? इट इज डिनोटेड बाय नल सेट और इट हैज नो आउटकम इन इट्स फेवर। और श्योर इवेंट क्या होता है? इट हैज ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस इन इट्स फेवर। मतलब सारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स उस इवेंट में आएंगे और सैंपल स्पेस को ही हम श्योर इवेंट बोलते हैं। और आपको पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो S इज द सबसेट ऑफ S। दैट्स व्हाट, दैट्स द लॉजिक। मैं दो एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमने दो डेफिनेशन दी। लेट मी गिव यू के सिंपल इवेंट, एक मिनट, उसके बाद बोलो तो सिंपल इवेंट दे रहे हैं कंपाउंड। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट। ओके, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब क्या? इसके फेवर में एग्जैक्टली एक ही आउटकम होगा। और याद है आपको आउटकम का दूसरा नाम क्या था? सैंपल पॉइंट। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में किया था और आज वीडियो लेक्चर में भी मैंने किया था कि सैंपल स्पेस के आउटकम को ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट और सैंपल पॉइंट इज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट और या सैंपल स्पेस। व्हाट इज सिंपल इवेंट? इट हैज only one outcome. It has only one outcome. आउटकम को हम रिजल्ट बोलते हैं या सैंपल पॉइंट बोलते हैं। It has only one outcome और सैंपल पॉइंट of sample space S of sample space S in its favor। सिंपल, ज्यादा क्यों हमको लिखना है? What is the simple event का definition? If event has only one sample point, it is called simple event or elementary event. Simple event or elementary event. Elementary event मतलब उसके फेवर में एक ही आउटकम होगा, एक ही रिजल्ट होगा सैंपल स्पेस का। Simple event is also called simple event is also called elementary event. Is also called elementary event. What is elementary event? Simple event. Simple event क्या है? उसके फेवर में एक ही आउटकम होगा या एक ही रिजल्ट होगा या एक ही सैंपल पॉइंट होगा। अब आपको पता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या था? एक ही आउटकम। तो सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट इज सेम एज सिंगलटन सेट। और आप सिंगलटन वर्ड यूज नहीं किया है। और फिर कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट दूसरा कुछ नाम कहते हैं पहले साथ कंपाउंड इवेंट। ओके, मतलब इसमें इसके पास इट हैज मोर देन वन, इट हैज मोर देन वन आउटकम, इट हैज मोर देन वन आउटकम और रिजल्ट और सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस S of sample space S of sample space S in its favor। सिंपल, फिनिश्ड। और इसका दूसरा नाम नहीं है। सिंपल इवेंट का दूसरा नाम एलिमेंट्री इवेंट था और कंपाउंड इवेंट का दूसरा नाम कुछ और नहीं है। हाँ, उसको हम इन मेनी रेफरेंस बुक्स उसको डीकंपोजेबल इवेंट भी बोलते हैं। कंपाउंड इवेंट इज आल्सो कॉल्ड in one or two reference books compound event का दूसरा नाम is also called decomposable event। decomposable event। ओके, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट का दूसरा नाम एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट का दूसरा नाम decomposable इवेंट। ठीक है, फाइन। सिंपल इवेंट का दूसरा नाम एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट का दूसरा नाम पुराने रेफरेंस बुक में दिया है डीकंपोजेबल इवेंट। अब सिंपल इवेंट का मतलब उसके फेवर में एक ही आउटकम होगा, उसके फेवर में एक ही आउटकम होगा और कंपाउंड इवेंट मतलब उसमें उसके फेवर में एक से ज्यादा आउटकम होगा। मतलब और इम्पॉसिबल इवेंट क्या था? नल सेट, उसके फेवर में एक ही आउटकम है। और श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट क्या था? इट हैज ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस इन इट्स फेवर। मतलब श्योर इवेंट सैंपल स्पेस में, नल सेट एक ही आउटकम है उसके फेवर में, मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट। और इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ
सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आप लोग समझ गए ना। इंस्टेड ऑफ डूइंग द अलजेब्रा ऑफ द इवेंट्स, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल so that you will understand this. Let me give you an example so that you will understand this. Okay, a dice is rolled once. A dice is rolled once. Okay, a dice is rolled once and few events are described. A dice is rolled once. तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो? यहाँ पे मैं चार आपको एग्जांपल दूंगा, कंपाउंड इवेंट या जो भी इवेंट्स है अलग अलग जो भी है मैं चारों चीजें आपको समझा दूंगा। मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? डाइस इज रोल्ड। तो सबसे पहले उसका आप सैंपल स्पेस देखो, जो पहले एक्सपेरिमेंट से आएगा समझिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोग ये चीज समझ जाओ। और डाइस इज रोल्ड वंस, तो डाइस इज रोल्ड वंस, तो उसका सैंपल स्पेस क्या है? S 1 2 3 4 5 6। ओके, इवेंट्स मैं डिफाइन कर रहा हूं और इवेंट्स हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ABCD। सपोज A इज इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन डाइस, ऑड नंबर ऑन डाइस। तो ऑड नंबर क्या है? 2 4 6, तो A विल बिकम 2 4 6, खत्म। सिंपल, इतना ही लिखना है। क्वेश्चन होगा a dice is rolled once, following events are described. A is event of getting an odd number, तो इवेंट A ढूंढना है, ये मिलेगा। अब A के फेवर में कितने ऑप्शंस हैं? A के फेवर में 3 ऑप्शंस हैं। therefore n of A 3 है, अप्रूवल लिख लिया। तो ये A कैसा इवेंट हो गया? A हो गया, A is a compound event. A is a compound event. Okay, now suppose दूसरा इवेंट है B. B is event of getting a factor of 6, getting a factor of 6, event of getting a event of getting a factor of 6 on the dice where it is rolled once। factor of 6 कौन से होते हैं? 1 2 3 6 फिनिश। तो B के फेवर में कितने आउटकम्स हैं? मतलब कंपाउंड इवेंट क्या था जिसमें एक से ज्यादा आउटकम हो, तो देयरफॉर n ऑफ B कितने आउटकम्स हैं? 4। तो B क्या हो गया? B is a compound event. B is a compound event. ओके, S तो वही रहेगा। S क्या है हमारा? What is our S? A dice is rolled once. तो हमारा सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। वो आपको लर्न हो चुका है ना। और सपोज मैं लिखता हूं C is event of getting identity of multiplication, identity of multiplication, identity of multiplication on the dice। आपको पता है what is the identity of multiplication? 1, a dice is rolled once, a dice is rolled once, तो उसका आउटकम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 और उसमें identity of multiplication 1 आता है। yes, तो therefore number of outcomes in C कितना है? 1। तो C क्या हो गया? C is a simple event। C is simple event क्योंकि उसके फेवर में एक ही आउटकम है। ओके, तो कंपाउंड इवेंट आपको समझ में आ गया, वो एग्जांपल दिए। ओके, सिंपल इवेंट और एक एग्जांपल देता हूं। ओके, नाउ B में रखता हूं इवेंट ऑफ getting you can say event of getting, you can say even prime number, get event of getting even prime number on dice। ओके, डाइस को रोल करने पर क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। 1 is either prime or composite, फिर 4 और 6 कंपोजिट नंबर्स हैं और 3 कैसा है? ओके, आपको पता ही है इवन प्राइम नंबर कौन सा है? इवन प्राइम नंबर खाली 2 है। तो D के अंदर, D के फेवर में कौन सा आउटकम आएगा? 2। तो सेट के अंदर ऐसा लिख देने का
So number of outcomes in D है, number of outcomes in D is 1. So D को मैं क्या लिखूंगा? D is a simple event. So I believe सिंपल इवेंट के दो एग्जांपल दिए, मतलब जिसके फेवर में एक ही आउटकम है वो सिंपल इवेंट, और जिसके फेवर में एक से ज्यादा आउटकम उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट. कंपाउंड इवेंट का दूसरा नाम क्या था? डिकम्पोजेबल इवेंट. और सिंपल इवेंट का दूसरा नाम क्या था? सिंपल इवेंट का दूसरा नाम था एलिमेंट्री इवेंट. ओके, नाउ लेट ई में रखता हूं इवेंट ऑफ गेटिंग नेगेटिव नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग नेगेटिव नंबर, या इवेंट ऑफ गेटिंग जीरो, इवेंट ऑफ गेटिंग जीरो ऑन अ डाइस. डाइस को जब भी रोल करते हैं, डाइस को जब भी रोल करते हैं तो जीरो आएगा नहीं. डाइस को रोल करते हैं व्हाट आर द 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, उसका मतलब जीरो आने का कोई चांस ही नहीं है. सो नो चांस देयर. We cannot get, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, we cannot get zero on a dice. So no outcome in favor of E. It's understood, in favor of event E. इसका मतलब E क्या हो गया? E हो गया null set. null set मतलब impossible event. और n of E कितना है? पॉसिबल इवेंट है, n of E क्या हो गया? 0. सिंपल. अब मैं लिखता हूं ABCD E है. अब आपको पता है मैं एग्जांपल देने वाला हूं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट का. F पे रखता हूं इवेंट ऑफ गेटिंग नेचुरल नंबर लेस देन 7, नेचुरल नंबर लेस देन 7 ऑन डाइस. ओके, अब डाइस को जब एक बार रोल करते हैं तो क्या मिलता है? 1 2 3 4 5 6. तो F क्या है? गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7 ऑन डाइस. तो लेस देन 7 ऑन डाइस कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 सारे. सो डाइस के जो भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 और 3 और 5 और 6, ऑल द नंबर्स आर लेस देन 7. तो F के फेवर में ये सारे आउटकम्स आएंगे. यस और नो? मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ऑल द नंबर्स, ओके, ऑल numbers 1 2 3 4 5 6 on dice are less than 7, are less than 7. yes or no? उसका मतलब F क्या है? 1 2 3 4 5 6. तो F क्या हो गया? Can I say F is equal to sample space? तो वो क्या हो गया? Sure और certain event. सिंपल. और उसके आउटकम कितने होंगे? 6, जो सैंपल स्पेस के आउटकम्स हैं. Therefore, n of S or n of F will be 6. n of F will be equal to n of S, which is 6. Just 1 minute, let me see if I can teach more or give you one more example. No, I will end over here only. So आपको समझ में आ गया होगा, तो इजीली आपको समझ में आ गया. और नोट करके आप लिख लो कि फर्स्ट लेट A B impossible event. तो A क्या होगा? 5 और n of A क्या होगा? 0. n of A 0 होगा. और दूसरा आप लिखो कि B is, let B be a sure or certain event. तो आपको पता है वो B क्या होगा? It will be equal to sample space और number of elements in B क्या होगा? n of S. See, these are relatively, this is very easy chapter and very interesting. अगर आप अच्छे तरीके से करोगे you can score full in it. और लॉजिक चैप्टर बाकी है उसमें मैं आपको मेरे मुताबिक कराऊंगा which will be helpful to you for your both as well as JEE. and textbook you can solve on your own. ऐसा होगा तो मैं textbook का solution आपको फॉरवर्ड कर दूंगा किसी भी एक रेफरेंस बुक में से लेकर. एंड सेम थिंग कैन गो फॉर स्टैट जो है जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही आपको लर्न करना है. दैट विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर स्कूल बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर जेईई आल्सो. तो वो दो चैप्टर्स हैं कौन-कौन से? दिस लॉजिक, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स. उसको मे बी आई माइट टीच फॉर टेक्स्ट बुक और आई माइट टीच द टाइप ऑफ सम्स
जो रिक्वायर्ड फॉर्मुलाज है वो भी थियरी है और अपने मुताबिक मैं बताऊंगा, बिकॉज दैट द वे आई एम टीचिंग इट विल मोर इफेक्टिव। और प्रोबेबिलिटी आपने देखा बहुत इजी है, ये थियरी मैंने आपको समझाई, इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट, उसके मैंने दो एग्जांपल आपको दे दिए और समझा दिए, मोर देन इनफ। So that's it for today. Thank you. Work hard. Take care. Don't waste time.